Yes, sir. Yes, sir. Okay, so quadratic में क्या है? So theories accordingly you can open your book before you so that you can use the formulas and concepts, because you can see the identities and theories or concepts in the summary part of your book. So you can open the book quadratic equation or theory of equation, है ना? So I will write the question. So using that you can solve it, and if you are not able to do, then I will solve it. Okay. So write the first question. So the question is, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, okay, and alpha plus beta is, okay, so not alpha beta, alpha plus beta comma alpha square plus beta square, alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube are in GP. Okay. So AB alpha beta are the roots of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, and alpha plus beta alpha square plus beta square alpha cube plus beta cube are in GP. Okay. And so for delta we use notation for b square minus 4ac, discriminant of quadratic, right? Which of the following, which of the following is or are correct? Okay, so what you have given, alpha beta are roots of quadratic, alpha plus beta alpha square plus beta square alpha cube plus beta cube are in GP. Delta is b square minus 4ac. Then which of the following is are correct? So first option is delta is non-zero. C, okay, option B is b time delta is 0. Option C is c time b is non-zero, and option D is c time delta is 0. Yeah, so tell me. Quickly take 1-2 minutes and quickly solve it. And if you are not able to do, then tell me clearly that then I will do it. So try this one.
A, मल्टी करेक्ट है क्या सर? Yes, check it. बी और डी। the BCD. A भी होगा ना? Okay, everyone is done. Sir, C will come. Okay. No, D will come, sir. D. D.
Okay. So how you approached? Okay. So all informations are given in the question. So first of all, tell me alpha beta are the roots of this quadratic. Okay. So what is alpha plus beta? C by minus B. Alpha into beta. C by. Okay. What it said? Alpha plus beta, alpha square beta square alpha cube beta regarding GP. So since alpha plus beta, alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube are in GP. So means what? Alpha square plus beta square whole square is alpha plus beta into alpha cube plus beta cube. Okay. So from here, what we can do, this alpha plus beta is minus b upon a, and this alpha cube plus beta cube you can write as alpha beta whole cube, alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. You know the identity, I think. So alpha plus beta cube when you open, alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. And if you open this, alpha square plus beta square whole square, so first of all you can write it alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta and this whole square. Okay, so this is minus b by a whole square minus 2c by a and this whole square. So minus b by a, this, so alpha plus beta whole cube is minus b by a whole cube minus 3c by a minus b by a. So from here it will be b square by a square minus 2c by a whole square, and from here it's a minus b by a when you open, minus bq by a cube plus 3bc by a square. Okay, so here we can take LCM. So LCM is a square, so it's b square minus 2ac and whole square. And from here you can also take LCM a cube, that's a minus b cube plus 3abc. Okay, now square you will open, b square minus 2ac whole square upon a4, and here minus The denominator cancel out. yes, so b4 minus 3ab square c upon a4, right? So this cancel out. Good. Now you open left side, a square plus b square, so it's a b4 plus 4a square c square minus 2 to the 4 a b square c, and that is b4 minus 3a b square c. So यहाँ से 4a square c square, bring this into left side, so it's a minus a b square c. So what you can take common? So 4a and c. So what left? ac minus b square, that is 0, and that is, you can say it's a minus 4ac, and this is minus delta. Delta was b square minus 4ac. Oh, sorry, what I missed, I mistakenly left 4 common. 1 minute. So what is common? AC is common, right? So 4ac minus b square is left. Yeah. So AC, and this was minus delta because b square minus 4ac is this. So minus AC delta is going to be 0. Okay, see the quadratic. Do you know the definition of quadratic equation? So this is quadratic equation. So you know why it is quadratic? Because x square involves. Suppose a is 0, then what will be this equation? Linear. Can a be 0 here?
No. No, A cannot be 0 because when A is 0, then it will not be quadratic. So to be it's a quadratic, A must be non-zero, and this is the general definition of quadratic. कि ax square plus bx plus c is equal to 0 is said to be a quadratic equation if A is non-zero. This is a necessary condition. So A is non-zero, so you can shift A into right side. So what you left, C delta is equal to 0 upon minus A. Why I'm shifting A to right side? Because we are sure that A is non-zero. That's why. So answer is C delta is 0. And this is which option is this? So only D is correct option. Yeah, any confusion? Ask. So I don't know, all you have all answered A, B, C, D, B, C, D, B, C, D. Everyone answered every options. So all combination I think you should have answered. So tell me if any confusion anyone have. तो जो लास्ट कंडीशन आई है उससे डिस्क्रिमिनेंट भी तो 0 होगा ना. Okay, discriminant alone may be 0. Okay, so from तो here B of C है ना. expand either C is 0 or delta is 0. Okay, so is there any option like that? But question is it necessary? Okay, so either C is 0 or delta is 0. Okay, so your point is हेलो सर. yes. सर मैंने मतलब वो जो जीपी की कंडीशन है उससे सॉल्व किया ना, तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन आया था, तो उससे दो कंडीशन पॉसिबल हो रही थी अल्फा बीटा की, तो मतलब वहां से एक इक्वेशन आ गया था एग्जैक्ट, तो वहां से किया तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब डेल्टा 0 आ रहा है. ऐसे सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. क्या 0 आ रहा है? 0 कैसे हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे. हाँ. सो रूट्स जब इक्वल होंगे तो क्या होगा? फिर रूट्स इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा फिर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 8 अल्फा. दिस आर इन जीपी. सो क्या ऐसा होगा? अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हो तुम, सो 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा क्यूब हो जाएगा. ये ना अल्फा बीटा इक्वल हो गया मतलब. तो यहाँ से देखो 2 अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा क्यूब. So do it like 4 alpha 4 is 4 alpha 4. Okay, so this is a correct, matlab in the sense this resulted a correct point. Okay, this may be a one case, but this is it always? Maybe C is 0, delta is not 0. One case maybe C is 0 and delta is not 0. So you cannot surely say delta is always 0. So either C is 0 or delta is 0. But it's not the case that always delta is 0. Or it's not always the case C is 0. So you have two options either. But it's sure that C into delta will be 0. It is sure. So you cannot surely say that delta is 0. Delta may not be 0. You may find, you have found one example delta is 0. There may be one example of delta is not 0. Like you take say is C0. You choose C is equal to 0. So ax square plus bx is 0. So 0 and minus b by a are two roots. Now that will also satisfy. You can put here 1 0 alpha 0 and b minus b by a. In this case you will also get the, so you cannot surely say delta is 0. Either condition is. So surely you can say what? C delta must be 0. It's a sure. But you cannot say C is 0 or delta is 0. Any one of them is 0 for sure, but not you can guarantee C is always 0 or delta is always 0. Okay, so that's why say it was a single choice question, just I converted into ESR so that you know you can see question was asked in single correct option. It was asking advance and single correct option it was asked. So single option it was. Just I changed it to ESR just to show what you think. Okay, so delta is 0 is not always sure. And B delta is 0 is not always sure. It's not always sure. This is not always sure. Okay, so this is for sure. सर अगर मल्टीपल आएगा तो हमें और भी आगे करना पड़ेगा ना सॉल्व कुछ. और क्या सॉल्व करोगे? मल्टीपल में भी तुम जैसे क्या है ना, बोलेगा which of the which are possible या which may be, है ना. So in that case you can think of.
है ना। सो श्योरली करेक्ट पूछेगा तो सिर्फ डी ही करेक्ट होगा। अगर चेक करना है कि C0 की डेल्टा 0 तो प्रोसीड कैसे करेंगे इसके आगे अगर मल्टीपल में आया तो? क्या क्या दोबारा रिपीट करो। यहाँ से हमें कंफर्म नहीं हुआ ना कि C0 की डेल्टा 0 है, तो अगर मल्टीपल में आया तो प्रोसीड कैसे करेंगे इसके आगे कंफर्मेशन के लिए? तुम्हें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं करना है, दिस इज द ऑप्शन। कंफर्मेशन क्या करना है, यहाँ से तुम आइदर सी इज 0 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सो या तो सी 0 है या सी नॉन जीरो है। अगर सी नॉन जीरो है तो ऐसा होगा, है ना। अगर सी 0 है तो ओके है, सी अगर नॉन जीरो है तो ऐसा होगा, बी स्क्वायर इज 4ac। अगर सी 0 हुआ तो बी भी 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मतलब ऐसा अगर कहेंगे, यहाँ सी या तो 0 है तब ये है, सी नॉन जीरो है तो ये है। सो ओनली दिस टू ऑप्शन है ना। बोलेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग मे बी, ऐसा होता तो एक ऑप्शन है सी इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक ऑप्शन आता है डेल्टा इज 0, देन यू कैन से इट्स करेक्ट। मे बी पूछेगा तब, दिस इज नॉट आस्किंग मे बी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। सो दे आस्किंग व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दैट इज डी ओनली। MSQ होगा, मल्टीपल करेक्ट होगा तो भी सिर्फ डी ही करेक्ट होगा। क्योंकि श्योरली तुम ये नहीं बोल सकती हमेशा 0 ही आएगा, नहीं भी आ सकता है, बी डेल्टा 0 नहीं भी होगा। तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा बी डेल्टा इज नॉट 0। इट्स नॉट श्योर डेल्टा इज नॉन जीरो ऑलवेज, 0 भी हो सकता है ना, नॉन जीरो भी हो सकता है, सी 0 भी हो सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। बट हाँ ये पक्का है कि ये हमेशा ट्रू है, तो MSQ में भी यही आंसर होगा। जो श्योरली करेक्ट है वही तुम्हें टिक करना है, मे बी होगा देन यू कैन थिंक। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो इफ S is a set of, if S is a set of Px, so S is a set of polynomials, है ना। This is a set of polynomial Px of degree लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। S एक सेट है जिसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 या 2 से कम, सच दैट, ठीक है, सो सच दैट P0 is 0, P1 is 1, P dash x is more than 0 for all x belongs to 0 1, okay। P dash x क्या होगा, मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, देन सो बोल रहा है कि S सेट क्या होगा, S में सिर्फ 0 पॉलिनोमियल होगा, सो दिस इज अ सेट ऑफ Px। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है, डोंट नो सही लिखा गलत लिखा है। तो ऑप्शंस आर S इज 0, ऑप्शन बी इज S कैन बी Ax, मतलब जो पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा S सेट में, व्हाई दे हैव नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ सेट, Ax प्लस 1 माइनस Ax स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल A इज मोर देन 0, और सी ऑप्शन है S इज इक्वल टू Ax प्लस 1 माइनस A इंटू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, ओके। एंड D जो है S इज Ax प्लस 1 माइनस Ax स्क्वायर फॉर ऑल A इज बिटवीन 0 एंड 2, बताओ। सो लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन, ओके। चलो ये क्वेश्चन है, एस सेट है पॉलिनोमियल का, तो बोल रहा है पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 पॉलिनोमियल होगा, या एस में इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे।
तो मुझे लगता है इस टाइप से देना चाहिए इसको सेट में, लाइक दिस, कि एस में एस से पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लाइक दिस, है ना। बट ओके, ठीक है, एस में क्या होगा। सो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 का, और इस तरीके से है, 0 पे 0 आता है, 1 पे 1 आता है, और पी डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब तुम्हें पता है डेरिवेटिव, मतलब पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग है 0 से 1 में, इंक्रीजिंग है। ऑप्शन बी। ओके ठीक है, बी लग रहा है तुम्हें, ओके। सी। ओके बी। अच्छा, जैसे देखो तुम ऐसे ऑप्शन से भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को, P00 है, तो यहाँ तो देखो, अगर पॉलिनोमियल मतलब इस सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, फर्स्ट ऑप्शन कहना चाह रहा है, अगर तुम देखोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, दे वांट टू से दैट पी एक्स तुम्हारा 0 होगा। तो देखो ये करेक्ट होगा क्या, सो 0 रखने पे एक्स को 0 तो आ जाएगा, बट 1 रखने पे एक्स को 0 नहीं आएगा, तो इसलिए गलत ऑप्शन है। ओके, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारा पॉलिनोमियल इस टाइप का है, किस टाइप का है, ए एक्स प्लस 1 - a × x², और यहाँ बोल रहा है ए पॉजिटिव होना चाहिए। सो देखो यहाँ से क्या करते हैं, तुम्हारा P0 निकालो, तो तुम्हें P0 क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा, ये करेक्ट है। P1 निकालो, सो a+1 - a, ये भी 1 आ गया, तो ये भी करेक्ट है। अब P' निकालो, तो क्या आएगा, a +2 टाइम
1 माइनस ए इंटू एक्स। सो ठीक है ना, डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ए प्लस 2 टाइम 1 माइनस ए इंटू एक्स। सो 2 टाइम 1 माइनस ए इंटू एक्स। अब क्वेश्चन है क्या ये पॉजिटिव है? अच्छा ये कब था? मुझे लगा पॉजिटिव जब x 0 1 के बीच है। ओके सो x 0 1 के बीच है। Yeah, so you have to check the condition that so this is positive when, so यहाँ से x निकालोगे तो क्या होगा? माइनस ए मिल जाएगा, सो x अगर 0 1 में है तुम चेक करो। सो अगर a को मान लो 1 माइनस ए तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। ओके सो इसके आप 1 माइनस ए क्या होगा? a पॉजिटिव है तो 1 माइनस ए विल बी व्हाट? माइनस ए नेगेटिव होगा। ठीक है ना? अरे गेटिंग सी, मैं चेक कर रहा हूँ इस ऑप्शन के लिए। तो a पॉजिटिव है तो माइनस ए इज नेगेटिव, तो 1 माइनस ए इज less than 1 because minus a will be less than 0 and 1 minus a will be less than 1, 1 add किया। okay this is less than 1 and is it more than 0? ऐसा नहीं बोला है ना, ये माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा है तो एडिंग 1 विल बी मोर देन माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच है। ओके लेकिन 1 से छोटा है। अब क्वेश्चन इज वेदर इज इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन ये है, देखो तो ए पॉजिटिव है ना, तो इस केस में तुम कोई एक ए कंसीडर करो और इस ए के लिए सोचो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? थिंक इट। ए यू कैन टेक, देखो यहां से ए यू कैन टेक एनीथिंग, पॉजिटिव नंबर है ना। और एनी मोर कंडीशन यू हैव? नो, जस्ट 3 कंडीशंस यू हैव। अच्छा तुम ऐसे ग्राफ बना के भी देख सकते हो इसका, नहीं okay suppose you take a as 10, let me check. So 2 into 1 minus 10 is minus 9, x you can take any number between 0 and 1। so उसको देखते हैं 10 minus 18x more than 0 होगा क्या? so यहाँ से x जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा? लेस देन, x लेस देन क्या आएगा? 10/18। ओके सो 5/9 होना चाहिए, बट ये ज़रूरी है यहाँ x क्या था? 0 से 1 के बीच था। तो अगर मैं 5/9 से बड़ा x लेता हूँ, लाइक 9/9, 1 ही ले लो, 1 नहीं तो 8/9 लो। सो सपोज यहाँ पे तुम x को अगर 8/9 रखते हो तो क्या आएगा? 10 माइनस 18 इंटू 8/9 सपोज। सो 10 माइनस 9 टू 18 16, ये क्या आ जाएगा? -6 जो कि नेगेटिव हो गया। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर इज इट वैलिड। मैं क्या बात कर रहा हूँ? सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये था कि p डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिटवीन 0 एंड 1। सो x तुम 0 1 के बीच का ले रहे हो तो इन केस में f डैश एक्स p डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए ना। और डेरिवेटिव आया है a प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स। सो x 0 से 1 के बीच का होगा और a यू कैन टेक एनी पॉजिटिव नंबर एंड c क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो मैंने यहाँ क्या लिया है? a को रखा है मैंने 10
और x को रखा है 8/9, तुम चेक करो तो ये कंडीशन फेल हो रहा है, तो बी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। मतलब अभी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, जनरल मेथड भी कर सकते हैं, सो आई एम डूइंग विथ ऑप्शन। चेक करो, सो ये बी ऑप्शन गलत है। सी पे बात करो, तो बी गलत है तो सी भी गलत हो जाएगा विद द सेम लॉजिक, है ना, ये तो हर रियल नंबर के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ तुम सेम एग्जांपल लो, सी भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत था ही, तो ओनली रिमेन्स ऑप्शन इज डी। अब नाउ वी कैन चेक इट, तो यहाँ डी करेक्ट होगा। तो ये तो हमने ऑप्शन से किया कि लाइक ऑप्शन से स्टार्ट किया, बिना ऑप्शन है करे तो सो एवरीवन गेटिंग व्हाट आई डिड। सो ये बी और सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसी को डाउट है इसमें? तुम ऐसे स्टार्ट ऐसे भी कर सकते थे, लाइक ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, सो यू कैन स्टार्ट विथ पी एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यू कैन स्टार्ट विथ बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऐसा लेना बेटर रहेगा। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ बी नॉन जीरो रहेगा हमेशा, ए पे कंडीशन होगा, है ना, बी तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो ऐसा लो। तो पी एक्स क्या होगा, पी जीरो निकालोगे तो ये हो जाएगा सी, जो कि जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से मिल गया सी जीरो होना चाहिए। और P1 फाइंड करोगे तो B प्लस ए प्लस सी तो जीरो ही हो गया, सो दैट इज शुड बी 1। तो यहाँ से A प्लस बी 1 होना चाहिए, तो B की जगह तुम 1 माइनस ए रख दो, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, पी एक्स यू विल गेट B की जगह रखो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और यू कैन से ए एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा दोनों कंडीशन से आ गया, अब तुम पी डैश एक्स फाइंड कर सकते हो, दैट इज ए प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स, और इसने बोला है दिस शुड बी मोर देन 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1। सो मतलब ग्राफ बनाओगे तो एक्स जब 0 से 1 के बीच है, इन दिस केस इट मस्ट बी इंक्रीजिंग, क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इस तरह से वैल्यू 1 पे तो 1 है, 0 पे 0 है, ये इंक्रीजिंग टाइप का होना चाहिए। सो ये पता है कब होगा ऐसा, तुम्हें पता नहीं ये ऐसा कब होता है, जब ए पॉजिटिव हो, ये तुमने देखा है ना, मतलब इन जनरल तुम्हें अगर याद हो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका शेप ऐसा होता है अगर ए पॉजिटिव हो, इसका शेप ऐसा होता है अगर ए नेगेटिव हो। तो अब इस क्वेश्चन में बात करो तो यहाँ जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस ए, जो ए होता है। सो अगर 1 माइनस ए तुम्हारा पॉजिटिव है तो इस शेप का होगा, मतलब ए मस्ट बी लेस देन 1। सो वो क्या था, वही ऑप्शन था क्या, ओके। सो मैंने क्या कहा, सो 1 माइनस ए है या ए माइनस 1, 1 माइनस ए है ना, तो ए शुड बी लेस देन 1, ओके। तो उसके लिए ये क्या होगा, बट एक्स पे कुछ भी कंडीशन नहीं, ये हमेशा हो जाएगा, बट एक्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो तुम्हें अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो अदर वे यू कैन थिंक ऑफ, है ना, मतलब वो पूरे आर के लिए बात करते हैं हम लोग, कोई क्वाड्रेटिक है पूरे आर पे अपर ऐसा होगा अगर ए लेस देन 1 होगा, बट यहाँ उसने पूरे आर की बात नहीं किया, उसने सिर्फ तुम्हें बात किया है कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 है उसके लिए बताओ। सो सिर्फ इसके लिए बात करना, ये पूरे आर के लिए कंडीशन होता है कि पूरे रियल नंबर पे ये सेफ होगा कब,
ओके, सो इसके हिसाब से, और इसमें जो दिया है ये 0 ए से ए तुम्हें क्या दिया है, 0 to 2. सो यू कैन चेक दैट ए ऐसा कुछ ले और क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा होगा क्या, बट इट्स नॉट बी लाइक, जैसे ए को तुम 1 ले लो तो 1 प्लस 0x, तो 1 पॉजिटिव रहेगा। ओके, ए को तुम 1.5 ले लो तो 1.5 मतलब 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 कितना होगा, -1/2, तो -x, ए -x, और ये तुमने 3/2 लिया है, x कैन बी 0 से 1 मैक्सिमम हो सकता है, तो 3/2 माइनस ये x आया, तो दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, हाँ 8 1 से ज़्यादा है तो और अच्छा है, सो लाइक अगर 1 से ज़्यादा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 0 से 1 के लिए बात कर रहा है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो डी विल ओनली सेटिस्फाई द कंडीशन, तो तुम क्या करो, यू थिंक ओवर इट, ये 3 ऑप्शन है, बस यही सोचना तीनों को सेटिस्फाई कौन करेगा इन 4 ऑप्शन में से, तो बस ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेगा। यस, एनी क्वेश्चन एनीवन हैव? If you don't have any question, then we can go to the third question. So this was also asked in advance. Okay. So write the next question. Next question is the root of x square minus bx plus c is equal to 0. ठीक है, the root of x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers. The root of x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers. Then b square minus ac, नहीं, b square minus 4c, b square minus 4c is what? Yeah, tell me. So root of ax square minus, not a is 1 actually, x square minus bx plus c is 0 are two consecutive integer. Then what is b square minus ac? Yeah, try soon. Okay. सब 1. Okay. Sir, answer is 1. Okay, 1 you get. Okay, wait. Sir, 1.
So everyone getting one? So how have we solved? Yes, anyone? रूट्स a और a+1 लिया तो इक्वेशन बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 2a+1 x प्लस a इंटू a+1, फिर वहां से b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 1 आ रहा है सर, बाकी कैंसिल हो जा रहा है. सो यहाँ से रूट्स अगर फाइंड करोगे तो क्या होगा, b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो लाइक वन रूट इज b अपॉन 2 plus root under b square minus 4c upon 2, and other root is b by 2 minus root under b square minus 4c upon 2. So obviously this one is larger, you can check because plus बीच में साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि और कंसेक्यूटिव रूट है, तो इसका मतलब है कि जो b by 2 है और रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है, और इधर तो b बाई 2 है माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है, इसमें तुम 1 ऐड करोगे, ठीक है ना, तो ये आएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव रूट है. सो एक 1 है तो दूसरा 2 है, एक 2 दूसरा 3 है, तो स्मॉलर वन में एक 1 ऐड करोगे तो लार्जर वन मिल जाएगा. यहाँ सॉल्व कर लोगे, सो यू विल गेट रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, इसको इधर बुला लो राइट वाले को, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 1, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज 1. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है ना. सो वी हैड टू रूट्स, दिस एंड दिस, सो ऑब्वियसली कॉन्सिक्यूटिव है, सो छोटे वाले में 1 ऐड करेंगे तो लार्जर 1 मिलेगा. सर बट इफ ऐड किया 1 तो फिर 1 माइनस भी करना पड़ेगा ना. अरे नहीं, तुम समझा नहीं. सो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर? ओह यस सर गॉट इट 1 प्लस अल्फा. हाँ, सो एक लार्जर वन इज अल्फा प्लस 1, अदर वन इज अल्फा. सो जो बीटा है वो अल्फा प्लस 1 है एक्चुअली, अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 इस टाइप के. तो मैंने पहले लार्जर वन लिखा है, सो आई नीड टू राइट फर्स्ट अल्फा प्लस 1 एंड अदर वन इज अल्फा. तुम दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, अदर वे भी. सो बीटा इज गिवन टू यू इज अल्फा प्लस 1, ये मतलब है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो बीटा जो अल्फा प्लस 1 है, तो यहाँ से क्या आया, बीटा माइनस अल्फा यू गेट इज 1. सो यहाँ से क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज 1. सो यू ओपन दिस, सो बीटा स्क्वायर plus alpha square, or you can do in other way, so you can write this as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. This is 0, correct? So alpha plus beta क्या होता है, minus b by a minus b by a whole square, 4c by a तो 1 है तुम्हारा, this is 0. so यहाँ से b square minus 4c is, एक मिनट, 0 आएगा या 1, ये 1 था ना, तो यहाँ क्या चलेगा 1, राइट साइड इज गोइंग टू बी 1 नॉट 0. तो मैंने मिस किया है. सो यहाँ से क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4c इज 1, दिस इज अदर वे, ठीक है. ये दूसरा मेथड है. तुम्हें दे रखा है बीटा इज अल्फा प्लस 1, तो बीटा माइनस अल्फा इज 1, सो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. यू कैन राइट बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड देन फॉर्मूला तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए, और ये 1 था राइट साइड में, 1 चल रहा है, तो 1 1 1 एंड हेयर यू गेट 1. दिस इज अदर वे. एक वो मेथड था, एक ये मेथड है. सो किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा. सो ये आसान, ये मेंस का क्वेश्चन है. तो ओके, लेट्स ट्राई द अदर क्वेश्चन. सो गॉट इट एवरीवन. सो अगर रूट निकाल के ऐसे कर लो, कंसेक्यूटिव है, सो वन रूट इज मोर देन द अदर बाय 1, सो लाइक दिस वे. Yeah, write the next question. I think fourth one is this. So the sum of all real values of x, the sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 की पावर x square minus 4x minus 60, नहीं, plus 4x minus 60, and this is equal to 1. Sum of all real values x satisfying the equation, समझ आया, x square minus 5x plus 5 and whole raised to power है x square plus 4x minus 60 is 1 is. So what is sum of all roots?
जो भी x की वैल्यूज आएंगी उसका सम बताना है। थ्री आंसर है। क्या आंसर है? 3। ओके। सर 3 है आंसर। सर आंसर इज 3। ओके ओके। कैसे आया? सर वो इक्वेशन का वैल्यू निकाला है एक्स के लिए उसका, और फिर वो सब वैल्यूज को ऐड कर दिया।
सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को एक बार 1 किया और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को 0 किया, वहां से 2x, यहाँ से 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को -1 और उसको इवन जिस पे आया था वो नंबर लिया। ओके, तो कितने सिचुएशन है, लाइक ऐसा हो सकता है कि एनी नंबर इसकी पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, एनी नॉन ज़ीरो नंबर। सो नॉन ज़ीरो नंबर एक ये सिचुएशन है, एक 1 रेज़ टू पावर एनी नंबर, दिस बिकम्स 1, और क्या है तीसरा, -1 की पावर इवन नंबर, that will also give us 1. Okay, so ये 3 सिचुएशन है। सो इसको 0 पुट करोगे तो क्या होगा, द फर्स्ट कंडीशन है ना, द फर्स्ट केस है, इन द फर्स्ट केस व्हाट यू विल डू, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, जो पावर में है, दैट विल पुट 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, है ना। हाँ, इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आई, 10 6 जा 60, तो माइनस प्लस 10 माइनस 6, -10 प्लस 6 आएगा, है ना। हाँ सर। और दूसरा सिचुएशन है कि ऊपर वाला ए नंबर हो, नीचे 1 हो, जो बेस है 1 हो, ये 1 हो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 5, दैट कैन बी 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कैन बी 0, सो फ्रॉम हेयर मतलब तुम रूट्स निकाल लो या नहीं निकालना चाहो तो, है ना, 4 1 जा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और 4। ओके, तीसरी सिचुएशन है कि 1 की पावर ए नंबर हो जाए तो 1 होगा, और -1 की पावर इवन नंबर, सो ये -1 हो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो, -1 हो, एंड दैट शुड बी इवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 मस्ट बी इवन, दोनों कॉमन सॉल्यूशन। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, सो 3 2 जा 6, 3 2 5, x बराबर 3,2 आएगा, करेक्ट, सो सम इज 5, एंड यहाँ से इसको पुट करके देखो, तो x को 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, सो व्हेन यू पुट x 3, तो इसकी वैल्यू देखो 9 प्लस 12 माइनस 60, 9 प्लस 12 माइनस 60, ये ऑड आएगा, चेक करो, -39, सो ये ऑड नहीं चाहिए मुझे, तो दिस इज रिजेक्टेड, x बराबर 2 रखो, तो 4 प्लस 8 माइनस 60, सो ये 12 माइनस 60 है ना, -48, सो ये करेक्ट है, सो 2, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आया, -10 6 1 4 और 2, इसको ऐड कर लो, तो ये कितना सम आया, इसका सम यहाँ से आएगा -4, इसका सम आया 5 और इधर है 2, तो आंसर इज -4 प्लस 5 प्लस 2 3, करेक्ट, या सो एवरीवन गॉट इट। सो हमने केसेस बनाए कि ऐसा आंसर कब 1 हो सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है कि 1 की पावर कुछ भी नंबर हो 1 आ सकता है, या एनी नंबर हैविंग पावर 0, एनी नॉन 0 1 आ जाए, एंड -1 रेस्ट पावर इवन इज 1, so that are 3 situation, any more can have, so you can check, can we have any more situation?
Okay, so let's write the next one. I think fifth or sixth. So next question is, let theta is between minus pi by 6 and pi by 12. Minus pi by 12. Theta is minus between minus pi by 6 and minus pi by 12. Suppose alpha 1 and beta 1 are the root of equation x square minus 2x. Suppose alpha 1 and beta 1 are the root of equation x square minus 2x. Sec theta plus 1 is equal to 0. And alpha 2 and beta 2 are the roots of equation x square plus 2x tan theta minus 1 is equal to 0. ठीक है. सो थीटा की वैल्यू तुम्हारा माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 की है, और you have quadratic x square minus 2x sec theta plus 1 0, and these are roots of equals x square plus 2x tan theta minus 1 0. If alpha 1 is more than beta 1, so if alpha 1 is more than beta 1 and alpha 2 is more than beta 2, then ठीक है, alpha 1 more than beta 1, alpha 2 more than beta 2, then alpha 1 plus beta 2 equals what? सोचो. सो थीटा माइनस 30 डिग्री से माइनस 15 डिग्री के बीच है. ठीक है, माइनस 30 से माइनस 15 डिग्री के बीच है. एंड अल्फा 1 बीटा 1 रूट्स है फर्स्ट इक्वेशन का, अल्फा 2 बीटा 2 रूट्स है सेकेंड इक्वेशन का. अल्फा 1 लार्जर है बीटा 1 से, अल्फा 2 लार्जर बीटा 2 से. क्वेश्चन इज अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ साइन कोस टैन, मतलब है कि टैन के टर्म बताओ, टैन और सेक में.
सर 0. Okay. Sir, 0 is the answer. Okay. Yeah, how have you got the solution? So any hint? Yes, anyone? So you know the quadratic formula, so we can solve using that. So क्या है ना, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इज 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 सेक थीटा प्लस माइनस है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर इज 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4ac अपॉन 2a. सो यहाँ से होगा
x इज इक्वल टू 2 सेक थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे 2 सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन, तो टैन थीटा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, तो यू कैन टेक मॉड प्लस माइनस पहले से ही है, ठीक है, अपॉन 2। तो x की वैल्यू आई है ना, क्योंकि हमें एंगल कहाँ दिया है -30 से -15, तो ये -15 डिग्री एंड -30 डिग्री इस बीच का एंगल है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का। इसमें कॉस पॉजिटिव रहेगा और टैन नेगेटिव रहेगा ना, ऑल साइन टैन कॉस, तो कॉस से यहाँ पॉजिटिव है, सो यहाँ से मुझे मिला सेक थीटा प्लस माइनस टैन थीटा। सो बताओ किसको अल्फा 1 नाम दे और किसको अल्फा 2 नाम दे, मतलब बीटा 1 नाम दे। सो यहाँ ऐसा है कि अल्फा 1 बड़ा है बीटा 1 से, सो अल्फा 1 इज लार्जर देन बीटा 1। तो एक है सेक थीटा प्लस टैन, एक है सेक माइनस टैन, सो टैन नेगेटिव सेक थीटा है। प्लस टैन अल्फा है। अल्फा 1 क्या है, लार्जर 1 बीटा 1 था ना, अल्फा 1 इज मोर देन बीटा 1, तो अल्फा 1 इज मोर देन बीटा 1 है। और टैन क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, इस फोर्थ का टैन नेगेटिव, सेक तो पॉजिटिव है, सो छोटा जो होगा माइनस वाला होगा, मतलब प्लस वाला छोटा होगा, सेक प्लस टैन थीटा। हमें क्या लेना है, अल्फा 1 बड़ा वाला, सो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दिस इज लार्जर देन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तुम्हें उल्टा लग रहा होगा, वो प्लस वाला छोटा कैसे हो गया, बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव है तो माइनस बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। ओके, सो जो माइनस है वो प्लस, इसी से एग्जाम्पल दूँ मैं, 2 माइनस माइनस 1 और 2 प्लस माइनस 1 कौन बड़ा है, सो ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ माइनस है स्टिल ये ज़्यादा है, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ। सो तुम्हें ये देखना है कि हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होता है और टैन थीटा फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई, सो नेगेटिव है तो जो माइनस को करेंगे वो नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, ये लार्जर है। सिमिलरली दूसरा क्वाड्रेंट था एक्स स्क्वायर माइनस 2x टैन थीटा एंड प्लस 1 इज 0, सो यहाँ से होगा x की वैल्यू 2 टैन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 4 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, यही ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac या अपॉन 2a 2, तो वहाँ क्या था सेक स्क्वायर माइनस 1 तो 1 होता है, 10 होता है। ओके, सो x विल गेट 2 टैन थीटा प्लस माइनस, यहाँ कैसे होगा अब 4 कॉमन होगा 2 टैन स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, अपॉन 2, सो व्हाट कैन वी राइट टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, क्वाड्रेटिक सही लिखा है ना, नहीं क्वाड्रेटिक गलत लिख दिया, देखो +2 है यहाँ -1 है, सो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, किसी को ध्यान नहीं है मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, कहाँ खोए हो पता नहीं तुम लोग। सो माइनस, अरे क्या था, पहले को चेंज नहीं करना, मुझे दूसरे को चेंज करना था, दिस वाज ओके। सो हमें तो इसको चेंज करना है ना, +2 10 -1 +2 10 -1, तो यहाँ चेंज होगा। So only 2 or 3 of you comes here to study, I mean learn, rest are just doing formalities. So x is minus 2 tan theta upon b square minus 4ac upon 2a, okay, this, and this is going to be 1 now, so x is minus 2 tan theta plus minus 2 sec theta, because 1 plus tan square is sec upon 2, so यहाँ से क्या होगा, x is माइनस टैन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, ठीक है। सो फिर से अब देख लो, सो एक है अल्फा 2 और बीटा 2, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अल्फा 2 लार्जर है बीटा 2 से, सो एक है माइनस टैन माइनस सेक, तो फिर से तुम्हें पता क्या है कि सेक थीटा इज पॉजिटिव एंड टैन थीटा इज नेगेटिव, तो माइनस टैन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
अब सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव को तो कम आंसर आएगा, तो ज़्यादा कब होगा, माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दिस इज मोर बिकॉज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यहाँ माइनस tan थीटा जो कि पॉजिटिव होगा एंड माइनस सेक थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेक को। तो फाइनली हमारे पास क्या है, ये अल्फा 2 आ गया और बीटा 2 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि पूछा था अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्या है, तो अल्फा 1 देखो क्या था, अल्फा 1 वॉज सेक माइनस tan, तो अल्फा 1 वॉज सेक माइनस tan और प्लस बीटा 2, तो बीटा 2 जो है माइनस tan माइनस सेक, तो माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ओके इस तरीके से क्या होगा, सेक सेक कैंसिल, तो माइनस 2 tan थीटा, दैट इज आंसर। ये एडवांस का क्वेश्चन है, जस्ट दोनों ने सॉल्यूशन फाइंड किया, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का था तो वो हमने देख लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन वैल्यू पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होगी, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे लार्जर स्मॉलर। तो अल्फा 1 छोटा था अल्फा 2 से, बीटा 1 छोटा बीटा 2 से, मतलब सॉरी अल्फा 1 बड़ा था बीटा 1 से, अल्फा 2 बड़ा था बीटा 2 से, हमने अल्फा 1 अल्फा 2 लार्जर सेलेक्ट किया एंड देन क्वेश्चन वाज अल्फा 1 प्लस बीटा 2, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2, देन इट वाज आंसर इज 2 tan। तो और 4 ऑप्शन था, मैंने दिया नहीं था, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, माइनस 2 tan थीटा। Note it down, please. Done, sir. Okay. So the next question is, if for a positive integer n, the quadratic equation x plus 1 and plus x plus 1 x plus 2 plus and so on, so next term is x plus n minus 1, ये है टर्म है, और इनटू में है x plus n and that is going to be 10n, that is going to be 10n, ठीक है, 10 times n has two consecutive integral solution, और सिमिलर क्वेश्चन एक और पहले आया था, has two consecutive integral solution, ठीक है, then n is equal to what, so x plus 1 into x plus 1 x plus 2 into x plus 2 x plus 3 and so on, x plus
n minus 1 into x plus n, and that is equal to 10 times n. So this equation has two consecutive integral solution. So question is, what is the value of n? So if you need options, so in exam option was given, so I can give you 9, 10, 11, 12. So maybe this helps you. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, आवाज कैसे आएगी? सो दिस इज द होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स। हाँ सर, हाँ सर। आई मीन दिस इज फॉर नाउ। सो सॉल्व करके ये लोग आंसर बताएंगे। टिल देन बताओ भाई, सॉल्व करो एंड बताओ। यस, क्या है आंसर?
सर 11 है। I don't know. I will solve it. Okay. So 11. What about others? सर 2 मिनट और। C option. Okay. Okay. I think I should do now. तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? Yes, anyone tell me how have you solved this?
So we have given x plus 1, x plus 1 times this is 10n. चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So n चाहिए and this has 2 consecutive. तुम्हें पता है ये consecutive के लिए क्या कंडीशन था? So like beta is alpha plus 1. Yeah, alpha is beta plus 1. Nothing matters. है ना? 1 is the sum of the others. You can write it alpha minus beta is 1. So यहाँ से क्या होता है? Alpha minus beta whole square is 1 and that is alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta, this is 1. And now what we can do, अब अगर क्वाड्रेटिक मेरे पास है तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, बट हमारे पास तो अभी इस फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो हाउ कैन वी ब्रिंग इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म? So for that, just simplify this. So the first one will be what? X square plus x. The second one, first term will be x square plus x. Second term will be x square plus 3x plus 2. Correct? So second term would be x square plus 2, 3x plus 2, and so on. Okay. So next would be x square plus, so what is the next term? X plus 2, x plus 3. So 2 plus 3, 5, and 2, 3 just 6. It will go like, and x square plus, so n into n, n plus n minus 1. So 2n minus 1, n plus n minus 1, this, and n into n minus 1. Was it? Yeah. So n minus 1 into n. And that is given to be 10n. Given to be 10n. Okay. So what we can do? Just collect square terms. So this is the last term. So how many terms are there? There are n terms because it started with x plus 1, x plus 2, x plus n till went it. Okay, there are n terms. So n x square will come, matlab x square plus x square plus x square plus x square, n x square. Now collect the x terms, x, 3x, 5x, and so on. So 1 plus 3 plus 5 and so on till 2n minus 1, and that is x. Next. Next we will collect, so 2 plus 6. So this 2 was nothing, so you can write it. How this 2 came? This 2 was 1 into 2. How this 6 came? This 6 was 2 into 3. Next will be 3 into 4, right? So 1 into 2 plus 2 into 3 and so on, plus 3 into 4. It is going like that, n into n minus 1. Yeah, n minus 1 into n. So in order, n minus 1 into n. And that is going to be 10n is given. Okay. So now this is nx square. Can anyone tell me the sum of this? 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1 is what? 2n minus 1 का whole square. नहीं. So like 1 plus 3 कितना होता है? 1 is, okay, एक कम देखेंगे तो 1. So 1 plus 3, 4. 1 plus 3 plus 5, 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7, 16. So if you can notice the pattern, the first term is 1 square. First 2 term sum is 2 square. First 3 term sum is 3 square. First 4 term sum is 4 square. So there are n terms. So the sum is n square. So you should remember the formula. 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1 is going to be n square. N square x. Now 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4. So what is this? How will we get this? How to find the sum of this? Summation of n into n minus 1. Yes, so you have seen, I think. So summation of, in sequence series, you must have seen this. So this summation of, we also write like k minus 1 into k. K starts with 1 till n, and this is 10n. So this will be what? Nx square, n square x, summation k minus 1 into k, summation k square. We know summation k square is n plus 1, 2n plus 1 upon 6 minus k n plus 1 upon 2, and that is 10n. So from here, nx square plus n square x, and now you can take LCM 6, or you can take common, not LCM, you can take common n into n plus 1 upon 2. So what is left?
2n plus 1 upon 3 minus 1, and that is 10n. So n, 1n, 1n, and 1n can be cancelled here. So it's a x square plus nx, that was n square. So 1n cancel. Here n plus 1 upon 2, you take LCM, 2n plus 1 minus 3. So 2n minus 2. So 2 is 2 into n minus 1 upon 3, and that is 10. So now I have x square plus nx, and you can take this 2 into n square minus 1 upon 6, that is equal to 10. So 2 can be cancelled here. So denominator would be then 3, okay, and 2 can be cancelled here. So this is left with. Bring 10 into left side. So x square plus nx and n square minus 1 upon 3 minus 10. This is the constant term. So now we are having a quadratic. So this is 3. So you can take this n square minus 1 minus 30. So n square minus 31 upon 3, and that is equal to 0. So now we have a quadratic, and we had given that बीटा माइनस अल्फा इज 1 है ना, कॉन्जिक्यूटिव है तो डिफरेंस 1 का होगा. सो बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, सो व्हाट इज योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज इक्वल टू 1. So you can write it alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta is 1. We have seen one question of this type, the first question I think it was. So it's a minus b upon a, so minus b is n, a is 1, the whole square 4 alpha into beta. So alpha into beta is what, c upon a, right? So c is n square minus 31 upon 3, a is 1, this is 0. So from here I think we'll get n. So n square minus 4 n square minus like 4 into 31, 124 upon 3, this is 0. So open this. So 3n square minus 4n square plus 124 is going to be 0. So n square is, have I written correct calculation? So is it right now? N square minus 31 upon 3 b c upon a, n square minus this 3n square minus 4n square plus 124, okay, upon 3, 3 went right side. So it's a minus n square is 124. But how is 124? Something is wrong, right? So check the calculation. Yeah, everyone check, something is wrong I think. So n square should bring 121. It should be 121, not 124. So I have done something wrong. So where is wrong? Just catch it. So two roots are consecutive, right? So alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. You see, this is 1, and what I this mistake was repeated last in last question also. So what is this? What should be this? Are you here? Yes, sir. So why don't you look at the mistakes? Like 1 is written 0 and no one cares. One will come, na sir. You are telling very soon. You should tell me tomorrow. Then what will happen? Still problem is not solved, I think.
So where is the mistake now? So mistake is, okay, so that was 1, that is 1. When you take LCM, 3 will come this side, so 3 here. So now you have, and you all get how you get answer. So just हाँ तुक्का लगाते हो, ये कहाँ से आंसर लाते हो पता नहीं, मेथड पता ही नहीं चलता तुम्हें. So n square is 121, right? So n is 11. This is answer now. So at least you should catch the mistake. That's where I did. Or at least when you note down, then you will catch it easily. If you don't note down, you are watching like a movie, so you forget after it finishes. Note it down and tell me if you have any doubt. So class was from 11 to 1 only, right? So time has already passed. Okay. Okay, so this was the questions based on I think 7-8 question I should have I have discussed. So this was asked in mains or advanced. So most question were from advanced. Okay. So this type of question you can practice at your home. So better is to take the last 10, 20, 30, 40, as many years as you want. Take the papers. It is available online. It is available in market. You can purchase book, previous year questions or solution, question bank, like this, and solve as many questions as you can without looking into solution. I'm stressing it because just train your mind to solve the question without looking the solution. Then you will learn only. Otherwise, you will mug up, right? So train your mind to solve unsolved problems, as many as you can. So whatever book you follow, so go through that, see the quadratic equation or theory of equation, go through theory, example, exercises, previous year questions, most importantly. Okay, so that's all for today, I think. Anyone has any question, any doubt, you can ask. No question? No, sir. Okay, then thank you, everyone. Bye.